Hello, learners. A very good evening to all of you. First of all, a very happy Diwali to all of you. And I really hope you're celebrating the festival with your family and having a good time. So, regarding the class today, it is a premiered class. ठीक है, record live नहीं है ये class since it is a Diwali time. ठीक है, इसकी वजह से the class is being recorded पहले ही. So I want to know you few things. First, कि yes, although this is a recorded class, so even if you're watching this live, so make sure that we connect through comments. ठीक है, I'll be there in the comment section. If you have any doubts, do let me know. And second thing is that this is the last class of the chapter. ठीक है, ये हमारा liberalization, privatization, globalization we started और उसमें we have done lesson 1 and lesson 2. This is the second part of the lesson 2. So technically the third part of the this chapter, LPG chapter का जो third part है. Although we are not left with very much, so this is going to be third as very short class of 20 to 30 minutes. The reason is कि already सब कुछ cover कर लिया है. बस जो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन वाला पार्ट था वो बच गया था लास्ट क्लास में, जो हमने एक्स्ट्रा क्लास ली थी वो बच गया था, तो वो वी हैव टू कवर ऑब्वियसली. So we are going to cover that in today's class. Last thing I want you to know is I'm reminding you again and again that I will have a quiz of chapter 1, 2 and 3 and I want all of you to perform very good on that. So do utilize your holidays because on Monday, the week after Diwali, जो Monday होगा, we are starting with straight away with the Menti quiz and then we'll do sample papers और वो सब classes करेंगे since the syllabus खत्म हो जाएगा. So by this class we are ending our syllabus. ठीक है. I will have also some revision videos in between. So I hope you come prepared for the chapter 1, 2 and 3 of Indian economic development. Now, before starting, I would like to introduce myself. So my name is Kanika. I'm an economics educator. I teach economics for class 11th and 12th on this platform. And I have completed my graduation from Lady Shram College, Delhi University recently. Okay. So now you can also join the Telegram channel. Scholars also have a Telegram channel. This is the link. Either you can you copy paste the link from the description. I think that would be the best way for you. You cannot write this, or if you write this, वो बहुत cumbersome process हो जाएगा. So you'll get this link in the description box. उसमें डू चेक आउट द लिंक एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. उसमें आपको क्लासेस आपकी लेट हुई है कोई क्लास, या कोई क्लास एक्स्ट्रा हुई है, कोई क्लास कैंसिल हुई है, या आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वहां पे आप मुझे बता सकते हो एंड आई कैन कनेक्ट विद यू ऑन दैट टेलीग्राम ग्रुप जो उसी चीज के लिए है. So definitely do join the Telegram channel and once check out the description box as well. It has some relevant information for you. So do check out the description box as well. Now this is the Bugs Bounty, which is basically a program of an academy. उसमें क्या होता है कि if you come across any inappropriate content in the video, then you can report that particular issue. उसका भी link आपको description में मिलेगा. And then you can claim your prize for that reporting. ठीक है, तो you will also have some benefits and obviously you can claim your prize. So in the chapter, this was our chapter. ठीक है, we have done the introduction part, the 1991 crisis part, NEP, liberalization, privatization, globalization, critical appraisal. We have done till now in the 2 classes. We are concerned with demonetization and GST in this class and some kind of revision. ठीक है, although chapter खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, so last के 10 or 15 minutes में I will revise the entire chapter. So this is the agenda for today's class. Let's get started with the demonetization. ठीक है. सो डिमोनेटाइजेशन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इफ एनीबडी नोस, नोटबंदी जो हुई थी. एंड व्हेन वाज इट हैपेंड, ठीक है, इट वाज हैपेंड ऑन 8th of November 2016. 2016 में 8th November को रात को, इफ यू रिमेम्बर द स्पीच विच आर प्राइम मिनिस्टर गेव, 8 बजे अचानक बेसिकली द 500 एंड द 1000 के जो नोट थे उनको बेसिकली वो लीगल टेंडर नहीं रहे थे एंड दे वर रिमूव फ्रॉम द स्टेटस ऑफ द करेंसी. सो दिस वॉज वॉट हैपेंड ऑन द नाइट ऑफ 8th November को हुआ था ये. 8th November को द 500 and 1000 notes were no more the legal tender. वो legal tender नहीं थे और basically they were no more
करेंसी, वो करेंसी के स्टेटस से हटा दिए गए थे। एंड डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी फ्रॉम द लीगल टेंडर। ठीक है, सो ये क्या हुआ था? दिस वाज हैपेंड इन 2016। ऑल्दो इंडिया में उससे पहले दो बार और डिमोनेटाइजेशन हुआ है। आई थिंक वन वाज इन 1946 और 48, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, बट इससे पहले दो बार और हुआ है, ठीक है, 2 या 3 बार। So this was the latest happened in 2016, which we are studying about, जो अभी हमारे सामने ही हुआ है. So I hope we'll be able to relate to that. तो इसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे. We have already talked about it. And now the good thing was, और the point to notice here, not the good thing, was कि 86% of money supply इन्हीं करेंसी नोट से बनी थी उस टाइम पे. So imagine the kind of like इमेजिन द काइंड ऑफ डीसेटलमेंट दैट हैपन, ठीक है, उस टाइम पे कि 86% ऑफ मनी सप्लाई है और उसको बेसिकली आपने एकदम से इलीगल कर दिया, और आई कैन से उस करेंसी हटा दिया, उस करेंसी को. सो इमेजिन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट हुआ होगा वो. और आई होप यू हैव मॉनिटर्ड द इम्पैक्ट, आपने देखा भी होगा अपने सामने कि किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ था एकदम से. एटीएम्स में कितनी लंबी लंबी लाइन लगी थी, पीपल सफर्ड सो मच. और एक शादी का सीजन भी था, तो जिन लोगों के घर में शादी वगैरह थी उन्होंने तो अलग ही सफर किया था. ठीक है, सो दैट वाज व्हाट हैपेंड. उसके पीछे एक एम था. द एम वाज टू कर्ब द करप्शन, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था. हमारी जो कंट्री है उसमें पाइपलाइन में जितने पैसे जाते थे गवर्नमेंट सेक्टर में, वो धीरे धीरे करप्शन तक, एंड में जिस तक पैसे पहुंचने होते थे वो बहुत कम बचते थे. रीजन क्या था? कि इस पाइपलाइन में बहुत सारे होल्स हो गए थे और बहुत ज्यादा करप्शन होने लगा था. तो द एम ऑफ द डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब द करप्शन, स्टॉप द इलीगल यूज ऑफ द करेंसी विच कैन बी. एक टेरर फंडिंग का बहुत मेजर लाइक एम था गवर्नमेंट का कि इसको स्टॉप करना है, इसको एलिमिनेट करना है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेरर फंडिंग. बेसिकली जो टेररिस्ट इंडिविजुअल या ग्रुप्स होते हैं उनकी फाइनेंसिंग इलीगली करी जाती है. सो एक एम ये भी था कि वो इलीगल फाइनेंसिंग है, जो इलीगल यूज ऑफ करेंसी है, वो स्टॉप हो जाए, करप्शन कम हो जाए, एंड जो ब्लैक मनी छुपाया हुआ है लोगों ने वो बाहर निकले. ठीक है, दिस वॉज अ वेरी जनरल इन नेचर, वेरी जनरल थिंग. दिस वॉज व्हाट वॉज डिमोनेटाइजेशन. ठीक है, नाउ what were the features of demonetization? It was a tax administration measure. ठीक है, ये टैक्स के पर्पज से एक मेजर लिया गया था. बेसिकली लोगों का हमारे कंट्री में क्या है कि बहुत कम परसेंट लोग टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स एंड अदर टैक्स. तो उस इवेजन को, टैक्स इवेजन को कम करने के लिए एक रिफॉर्म लेके आ गया था. दैट वाज डिमोनेटाइजेशन, एंड इट इज वाइडली नोन एज द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर के नाम से भी इसको जानते हैं. और इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर के रूप में. नाउ द मेन एम वाज टू कर्बिंग द टैक्स इवेजन. जो लोग टैक्स से बचते थे, टैक्स उनका ये एम उन लोगों के लिए था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो ब्लैक मनी होता है वो आप डिजिटली वगैरह नहीं रखते ज्यादातर ही, वो आप कैश के फॉर्म्स में रखते हो. ठीक है, वो आप कैश के फॉर्म्स में रखते हो. तो उससे क्या होता है कि जब एकदम से डिमोनेटाइजेशन हुआ तो वो पैसा कोई काम का नहीं हुआ, क्योंकि जो व्हाइट मनी था गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रोविजन बना लिए थे कि कैसे जो लोग हैं इतने पैसे को एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू द न्यू मनी, और दे कैन डिपॉजिट इन द बैंक. ठीक है, तो वो सब सिस्टम सही था. जिन लोगों के पास एक्चुअली अपने जो व्हाइट मनी थी उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं थी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द डिफिकल्टीज इन द सिस्टम. ठीक है, जिस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे उनका पैसा अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया था. बट जो ब्लैक मनी था दैट हैड टू मतलब उनको ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी और प्रॉब्लम्स हुई थी. जो जिनके पास ब्लैक मनी था, बिकॉज अल्टीमेटली जो एम था वही था कि ब्लैक मनी को खत्म करना इन द इकोनॉमी. एंड देयर वाज अ स्ट्राइकिंग फिगर कि जो टोटल मनी था उसका कुछ ही परसेंट मनी आया था जो एक्सचेंज हुआ था. मतलब जो जितना बाकी का बचा हुआ था वो ब्लैक मनी था, बहुत ज्यादा परसेंटेज था वो. Now, curbing the tax evasion, we have seen. Now, the channelizing savings into financial system. ठीक है, जो इंडिया की जो सेविंग्स थी, हाउस होल्ड सेविंग्स या प्राइवेट सेविंग्स थी, उनको इस तरीके से चैनलाइज करना कि वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आए. ठीक है, वो कहीं और ना सेव करने की बजाय वो बैंक्स में सेव करे. ठीक है, बैंक्स में सेव करे. सो दैट वाज द फॉर्मल की सेविंग्स है वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आए, फाइनेंशियल सिस्टम में आए. सो सेविंग्स को इंक्रीज करना भी एक एम था डिमोनेटाइजेशन का. नाउ द लेस कैश इकोनॉमी, डोंट कॉल इज द कैशलेस इकोनॉमी, वो गलत हो जाएगा, और द कैश लाइट इकोनॉमी.
आई कैन से। उसका मतलब क्या था कि एक स्टेप था कि इंडिया का जो एक टोटल कैश की इकोनॉमी है, जो मनी सप्लाई, जो प्रिंटेड मनी है, उससे थोड़ा सा हटके डिजिटल हो जाए, डिजिटाइज्ड मनी की तरफ जाए। तो उसके लिए भी उसको ऑल्दो डायरेक्टली नहीं था, बट दैट वाज अ इनडायरेक्ट फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन, कि जो लेस कैश इकोनॉमी है, कि इकोनॉमी में कैश कम होगा, दैट वाज, और कैश लाइट हम उसको बोल सकते हैं। सो दैट वाज ऑल्सो द फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि वो कब हुआ था डिमोनेटाइजेशन, 8 नवंबर 2016। देन उसमें क्या हुआ था, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, वो लीगल टेंडर नहीं रहे थे। रीजन क्या था, करप्शन कम करना एंड इलीगल यूज ऑफ मनी का कम करना। उसके अलावा टैक्स का कलेक्शन इंक्रीज करना, सेविंग्स इंक्रीज करना, और इकोनॉमी को थोड़ा सा लेस कैश बनाना। सो दैट वाज द रीजन। नाउ इम्पैक्ट क्या हुए थे डिमोनेटाइजेशन के, सिंस ऑलरेडी देर हैज बिन, आई थिंक अभी 4 या 5 साल हो गए हैं, इफ यू कैलकुलेट 5 साल, 5 के साल के आसपास हो गए हैं। सो वी कैन हैव द इम्पैक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन नाउ। Impacts of demonetization में let's see them point wise, but the thing is they are interrelated to each other, interconnected to each other, कोई किसी का effect है, कोई किसी का cause है। So do understand them very clearly and समझो कि कौन किसका impact किसकी वजह से क्या हुआ था। The first was to rise in the tax collection because of the increased disclosure। ठीक है, एक स्कीम भी आई थी कि लोग वॉलंटरली डिस्क्लोज कर सकते हैं, जो आज तक उन्होंने इनकम डिस्क्लोज नहीं करी है। एंड डिमोनेटाइजेशन की वजह से टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज हुआ था। so, जो गवर्नमेंट का एम था वो कुछ हद तक पूरा हुआ था, कि टैक्स कलेक्शन और जो टैक्स इंक्रीज हो गया था, क्योंकि लोगों ने डिस्क्लोज करना स्टार्ट कर दिया था मनी को। देन रियल इस्टेट के जो प्राइसिंग थे वो कम हो गए थे। ठीक है, दिस वॉज पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव बट द नेगेटिव इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जो बहुत इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। ठीक है, but you have to ultimately remember the impact. So the impact was the real estate prices declined. Now the digitization increased, which means कि लोग कैश की जगह they were moving to other electronic forms of money. ठीक है, can anybody tell me one electronic form of money? One electronic form of money. ठीक है, और आई कैन से कि कैश की जगह आप क्या यूज कर सकते हो। बहुत बहुत सिंपल सा है, अपनी डेली लाइफ में भी आजकल वी कैन सी कि आप कोई भी शॉपिंग वगैरह जाते हो या छोटे से छोटी चीज खरीद सकते हो। सो इफ यू आर बाइंग अ चॉकलेट, तो भी आप उनको पेटीएम से, यूपीआई से, ठीक है, किसी भी ऐप से, गूगल पे कर सकते हो। सो वो क्या है, वो डिजिटाइजेशन है। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटाइजेशन हैज इंक्रीज, दिस वॉज द थर्ड इम्पैक्ट। Now, the increase in the savings and the bank deposits. We have already talked about कि गवर्नमेंट का एक एम क्या था कि सेविंग्स इंप्रूव हो और बैंक डिपॉजिट्स इंप्रूव हो, क्योंकि लोगों ने अल्टीमेटली बैंक्स में पैसा रखना शुरू किया था। तो इसकी वजह से जो सेविंग्स हैं या बैंक डिपॉजिट्स हैं वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, there was an increase in the savings and in the bank deposits. Now decline in the cash transaction. Obviously अगर डिजिटाइजेशन होगा तो कैश के ट्रांजेक्शन में कमी आएंगी। तो कैश की ट्रांजेक्शन कम हो गई थी। पहले क्या होता था, जो ब्लैक मनी था, व्हाइट मनी था, सब कैश में था, तो कैश में सब कुछ चलता रहता था। ब्लैक मनी को आप कैश में चला दो। नाउ ब्लैक मनी की लाइक जो कम हो गया थोड़ा सा, तो उसकी वजह से कैश की जगह डिजिटाइजेशन ट्रांजेक्शन ज्यादा होने लगी थी। नो इफेक्ट ऑन द पब्लिक सेक्टर वेल्थ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर वेल्थ में क्या हुआ था। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर बाय नाउ। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की वेल्थ में क्या इम्पैक्ट हुआ था, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था। सोच के भी देखो कि कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम वेल्थ की बात करें तो नाउ, क्योंकि अगर कुछ रेवेन्यू हुआ होगा तो उल्टा एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया होगा उतना ही। नाउ द प्राइवेट सेक्टर वेल्थ डिक्लाइंड, बट द वेल्थ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर डिक्लाइन हुई, क्योंकि एक तो फर्स्ट तो रियल एस्टेट के प्राइसेस कम हो गए थे, तो उसकी वजह से जो वेल्थ थी वो डिक्लाइन हुई। उसके उसके अलावा देयर वर वेरियस अदर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, जैसे कि आपके शेयर प्राइसेस, शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट्स वगैरह आए थे। ठीक है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो गया था। सो ये सारी चीजें होने की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर की वेल्थ है वो डिक्लाइन हो गई थी, और लोगों के पास अल्टीमेटली जो ब्लैक मनी वगैरह करप्शन का पैसा था वो भी कम हो गया था। तो वेल्थ अलग अलग रीजन की वजह से डिक्लाइन हो गई थी। सो वी हैव स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, द रीजन बिहाइंड द डिमोनेटाइजेशन एंड व्हाट एग्जैक्टली वाज द डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, सो हमने ये 3 चीजें कर ली हैं।
Now we come to goods and services tax. Can anybody tell me goods and services किस type का tax है? Is it an indirect tax or a direct tax? We have already done this. ठीक है. But can anybody tell me whether it is an indirect tax or a direct tax? I'll wait for 10 seconds क्योंकि the video is not live तो मुझे पता नहीं किसने आंसर किया नहीं किया. But if anybody is answering, then do answer. Meanwhile, I'll take some time out to clear the difference between the direct tax and indirect tax as well. Reason is कि we have enough time in this class, तो आराम से हम कुछ भी बात कर सकते हैं. So indirect tax is basically the taxes which are levied on the goods and services. जो goods and services पे जो tax होते हैं वो indirect taxes होते हैं. Direct taxes are levied on the individuals and companies. So individuals और companies पे जैसे income tax और corporation tax है, those are their direct taxes. So obviously GST is an indirect tax. ठीक है. And GST कब आया था? In the 2016 में ये पार्लियामेंट में the parliament passed a law, Goods and Services Act 2016, to simplify and introduced a unified indirect tax system in India. The act was passed in 2016 and the law came into effect in 2017 July. और if I want to be more specific, 1st July 2017 को GST इंडिया में आया था. ठीक है. इंडिया में बेसिकली इफेक्ट में आया था और लागू हुआ था जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. So 2016 में एक्ट पास हुआ था. 1st July 2017 में it came into effect and the reason was to simplify and the indirect and unified indirect tax system. इंडिया में पहले क्या होता था कि बहुत सारे टैक्सेस होते थे, बहुत सारे. ठीक है. एक चीज का अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया था कि आप सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, वैट कर रहे हो, फिर आप जब सारा टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो उस टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम सेस बोलते हैं. ठीक है. तो वो आप 2% ये सेस कैलकुलेट कर रहे हो, 1% ये सेस कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया था पूरा. सो जीएसटी में क्या हुआ था कि इट मर्ज 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो 17 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ड्यूटीज वगैरह थे, वो मर्ज हुए. एंड 23 सेस इज द टैक्स ऑन द टैक्स. तो वो सब मर्ज होके एक आपका आया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ठीक है. उसकी बेसिकली टैग लाइन भी थी वन नेशन एंड वन टैक्स. सो विच इज वेरी मच सेल्फ एविडेंट कि इतने सारे टैक्सेस और सेस को मर्ज करके देयर वाज वन थिंग और वन टैक्स, दैट वाज वन नेशन वन टैक्स. The expectations of the government were to generate additional revenue for the government and the reduce tax evasions. ठीक है. एंड द क्रिएट वन नेशन वन टैक्स. गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि लोग जो एडिशनल रेवेन्यू आएगा टैक्सेस से गवर्नमेंट के पास, एंड रिड्यूस द टैक्स इवेजन कम होगा, एंड टू क्रिएट द वन नेशन वन टैक्स, एक देश और एक टैक्स. नाउ these were the few objectives or the motive of the government behind introducing the indirect tax or the goods and services tax. The main motive was to simplify the process. ठीक है. सब simplification was the main motive और एक टैक्स लेके आना, that was the main motive. Those were the indirect motives. Now, in order to encourage better compliance on the part of taxpayers, many procedures have been simplified and rates have been substantially lowered. ठीक है. So that was again the same thing we have discussed. Now there are various types of taxes under GST और I can say कि there are basically, ठीक है, जो आपके indirect taxes होते हैं वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा सकते हैं या वो स्टेट गवर्नमेंट को जा सकते हैं. ठीक है. या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट को जा सकते हैं. तो पहले क्या होता था कि सबके अपने अलग अलग टैक्स होते कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टैक्स हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स हो गया. नाउ एक टैक्स तो आप लेके आ गए जीएसटी, बट द सिचुएशन वॉज कि जीएसटी में जो पैसा आएगा उसको कौन लेगा, स्टेट्स लेंगे या सेंटर लेंगे, या जिस स्टेट में मैन्युफैक्चर हुआ है वो लेगा या जिसमें अल्टीमेटली कंज्यूम हो रहा है वो लेगा टैक्स को. ठीक है. तो ये टैक्स की जो एक बैटल थी वो काइंड ऑफ स्टार्ट थी. सो उसकी वजह से क्या था कि तीन तरीके थे, बेसिकली तीन मेथड्स थे. CGST, SGST, IGST. CGST is central GST, SGST is state GST. ठीक है. Although if you will study the GST in the graduation तो आप ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है. बट द जिस्ट वॉज कि दो तरीके की सप्लाई हो सकती है, इंटर स्टेट सप्लाई एंड द इंट्रा स्टेट सप्लाई. ठीक है. सो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में क्या होता था, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सेंटर और स्टेट आधा आधा बांट लेते थे. फॉर एग्जाम्पल कोई गुड है जिसके ऊपर 28% जीएसटी है तो 14% और 14% चला जाएगा. ठीक है. जस्ट लेट मी चेक इट इज इंट्रा स्टेट ओनली. यस, इंट्रा स्टेट ही है. इंट्रा स्टेट है दोनों का. ठीक है.
तो यहाँ पे क्या था, जब इंट्रा स्टेट होगा, सीजीएसटी और जो आपका प्रॉपर जीएसटी है वो दो पार्ट्स में होगा, डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा सेंटर और स्टेट को चला जाएगा। देन देयर वाज इंटर स्टेट सप्लाई जब होगी, तब आईजीएसटी था, इसका मतलब था इंटीग्रेटेड जीएसटी और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें क्या था, ये सारा सेंटर को जाता था और बाद में एडजस्टमेंट वगैरह होती थी। ठीक है, सो इंटरस्टेट सप्लाई एंड इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रा में दोनों को आधा आधा मिल जाता था, उसको हम सीजीएसटी और एसजीएसटी बोलते हैं, सेंटर और स्टेट, सी और एस रिस्पेक्टिवली। देन इंटरस्टेट सप्लाई में इंटीग्रेटेड जीएसटी होता था, जो सारा पैसा सेंटर को जाता था। ठीक है, सो दिस वाज द व्हाट वाज डिसाइडेड। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स वर नॉट वेरी इन द फेवर ऑफ जीएसटी। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जो जीएसटी के फेवर में नहीं थे, उनको लगता था कि जीएसटी आने से जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इफ यू आर फॉलोइंग अप द न्यूज एंड ऑल ऑफ दैट, तो अभी पता होगा कि अभी देर वॉज अ ह्यूज डिस्प्यूट और काइंड ऑफ एक दोनों सेंटर और स्टेट में एक काइंड ऑफ डिस्प्यूट सी हो गई थी। क्योंकि क्या हुआ था, जीएसटी जब आया था उस टाइम पे बहुत सारे स्टेट जो थे वो रिलेक्टेंट थे कि हम जीएसटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जीएसटी इज अ एक्ट जो ओवरऑल इंडिया है, ओवरऑल पैन इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पूरी जो इंडियन टेरिटरी है उसमें है। सो कुछ स्टेट ऐसे थे जिनको नहीं चाहिए था जीएसटी, क्योंकि उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी वो ये थी कि जीएसटी आने से जो टैक्स कलेक्शन है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। ठीक है, जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाएगा। सो उसकी वजह से सेंटर ने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसने उन स्टेट्स को एक काइंड ऑफ वो दिया, अश्योरेंस दिया कि अगर आपका जो अगले 5 साल तक, आई थिंक दिस वाज 5 years ओनली, अगर अगले 5 साल तक आपका जो टैक्स कलेक्शन है जितना होना चाहिए उससे कम हुआ है तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। तो ये उस टाइम पे डिसाइड हुआ था। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि इससे पहले ही कोविड-19 आ गया। ठीक है, ये सब चल रहा था, सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ठाक चल रहा था, ज्यादा डिफरेंस नहीं थे। अगर थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम थी तो सेंटर उनको कंपनसेट कर रहा था, बट ये क्या हुआ कि कोविड-19 आ गया। सो दिस इज अ होल न्यू, ऑल टुगेदर न्यू ट्विस्ट इन द स्टोरी। ठीक है, कोविड-19 आने की वजह से सब कुछ सब कुछ एकदम रुक गया एकदम से। तो क्या हुआ कि टैक्स कलेक्शन होना भी कम हो गया। तो टैक्स कलेक्शन होना कम हो गया, उसकी वजह से ना तो सेंटर के पास टैक्स जाता था, कलेक्शन आता था, रेवेन्यू आता था, क्योंकि द होल कंट्री वाज इन द लॉकडाउन। तो सेंटर की भी कोई इनकम नहीं थी, रेवेन्यू नहीं था। साथ साथ में स्टेट्स के पास भी रेवेन्यू नहीं आता था। तो नाउ स्टेट्स डिमांडेड, जो स्टेट्स को अश्योर किया गया था कि अगर 5 साल तक आपका रेवेन्यू कम आएगा तो हम कंपनसेट करेंगे। सेंटर ने ये बात कही थी, स्टेट ने उस आर्ग्यूमेंट को लेके सेंटर से ने कंपनसेशन की डिमांड की कि वी नीड कंपनसेशन नाउ। बट देर इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट ऑफ निर्मला सीतारमन। ठीक है, आर फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड। जो ये आपका कोविड-19 है, इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, और ये ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। सो वी आर नॉट लाइबल टू पे यू। ठीक है, तो हम आपको कुछ भी कंपनसेट नहीं करेंगे। दिस वॉज जस्ट इन इंटायर स्टोरी जो अभी रिसेंटली चली है, कुछ आई थिंक 4-5 महीने हो गए आई थिंक। तो ये सब चल रहा था, बट अल्टीमेटली दे सेटल्ड, और आई थिंक द सेंटर अग्रीड टू पे सम अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, बाद में सेटलमेंट हुई थी कि हम आपको कुछ अमाउंट दे देंगे, वो सब हुआ था। बट दिस वॉज द इंटायर स्टोरी, एंड द न्यू एडिशन टू द स्टोरी इज अभी रिसेंटली अक्टूबर में, जो अक्टूबर मंथ का जीएसटी कलेक्शन है, दैट इज द सेकेंड हाइएस्ट। जब तक जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद से द सेकेंड हाइएस्ट कलेक्शन इज ऑफ द अक्टूबर मंथ जो अभी गया है। So this is about the GST and the center and state dispute, and basically just the story part, ताकि you should know basically as an economic student कि आपके आसपास इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट क्या चल रहा है। ठीक है, now we'll come to the features of GST. Features of GST में क्या देखेंगे, the single tax structure. We have talked about it has merged 17 indirect taxes and 23 cess. ठीक है, तो इतने टैक्स मर्ज करने के बाद एक सिंगल टैक्स आया है और एक स्ट्रक्चर आया है। स्ट्रक्चर क्या है, आई थिंक देर आर 4 स्लैब्स, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द स्लैब्स, मुझे 28% याद है, एक 0% का भी स्लैब है जिस कुछ प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है, और आई थिंक 18% का भी स्लैब है, इफ आई कैन सी दिस इन द बुक। यस, 12% एंड 18%, और ये सब एक और स्लैब है।
तो ऐसे करके अलग अलग स्लैब्स है, उसमें क्या होता है कि आपके गुड्स को क्लासिफाई कर दिया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल लग्जरी गुड्स हैं आपके, वो 28% उनके ऊपर जीएसटी लगेगा। और कुछ गुड्स हैं जैसे पेट्रोलियम वगैरह, उनको बाहर रखा गया था शुरू शुरू में कि उनके ऊपर 0% जीएसटी लगेगा, उनके ऊपर पहले उनको जीएसटी के परव्यू से ही बाहर रखा गया था, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी थी जिनके ऊपर टैक्स भी नहीं लगाया गया था। तो ऐसे करके जो सारे गुड्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। एंड आई कैन नॉट टेल यू कि किस कैटेगरी में क्या आता था, क्योंकि जिस टाइम पे डिसाइड हुआ था उस टाइम के बाद से बहुत बार रेगुलर चेंजेस आते रहते हैं कि अब इस बार ये टैक्स बढ़ा दिया, इस कैटेगरी को इसमें डाल दिया, इस चीज को इसमें डाल दिया, ये वाले लिमिट हट गई है। वो रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। बट द बेसिक थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज कि अलग अलग स्लैब्स या स्लोट्स थी जिनमें आपके गुड्स को क्लासिफाई किया गया था और उतना परसेंट टैक्स लगता था उनके ऊपर, ठीक है। देन द इफेक्ट ऑन द प्राइसेस। इफेक्ट ऑन द प्राइसेस में हम अगर पर्टिकुलरली बात करें तो कुछ चीजें जीएसटी आने के बाद काफी महंगी हो गई हैं। जैसे कि आपके लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स ऑब्वियसली वर पुट इन द 28% वाला जो हाईएस्ट स्लैब है आपका, वहां पे पुट करे गए। तो उसकी वजह से लग्जरी गुड्स के प्राइसेस काफी इंक्रीज हो गए, ठीक है। सो दैट इज द सेकेंड फीचर ऑफ द जीएसटी। नाउ वी हैव अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। आपके दो टाइप के हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन। द प्रॉब्लम इज कि इंडिया में, इंडिया इज अ कंट्री बेसिकली, ऑब्वियसली यू नो। तो वहां पे क्या है कि इंटर स्टेट जो भी स्टेट्स के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दिल्ली में कोई चीज बना के मुंबई में बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द इंटायर थॉट वाज गिवन कि मतलब जीएसटी कहाँ पे लगाया जाए, जहां पे मैन्युफैक्चर हुई है वो चीज, सपोज कोई चीज दिल्ली में बनाई गई है एंड इट हैज बीन सोल्ड इन द तमिलनाडु, ठीक है, कंज्यूम्ड इन द तमिलनाडु। तो क्या वो दिल्ली को वो टैक्स का पार्ट मिलेगा या वो तमिलनाडु को उस टैक्स का पार्ट मिलेगा? सो दिस वाज डिसाइडेड दैट जीएसटी इज एन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं उसी स्टेट को उस टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ऑल्दो बाद में एडजस्टमेंट वगैरह हुई है, बट द इट इज होनली अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जहां पे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हुई है उसी स्टेट को, यू हैव सीन की जो एसजीएसटी है, जो आधा आपका हिस्सा मिलने वाला है स्टेट्स को एसजीएसटी, वो उसी स्टेट को मिलेगा जहां पे कंजम्पशन हुआ है। नाउ इट स्प्रेड इन द होल कंट्री, विच बेसिकली मीन्स कि जितने भी इंडिया की टेरिटरी है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, हर जगह जीएसटी एप्लीकेबल है। नाउ द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंडर एक लिमिट होती है कि अगर एक बिजनेस की इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट्स इससे ज्यादा जाते हैं तो उनको कंपल्सरीली रजिस्टर करना पड़ता है जीएसटी के लिए, ठीक है। एंड जीएसटी का एक आपका नंबर होता है जिसको जीएसटीआईएन बोलते हैं, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये आपका एक जैसे आपका आइडेंटिफिकेशन जैसे आधार नंबर है आपका, वैसे ही एक नंबर होता है जो बिजनेस या इंडिविजुअल्स भी रखते हैं जीएसटी ट्रांजेक्शन के लिए। वो कहाँ पे काम आता है, ऑल्दो दिस इज टूवर्ड्स द साइड ऑफ कॉमर्स के साइड चला जाएगा पूरा टॉपिक, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई थिंक एक बुक में मैंने देखा था वहां पे लिया होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑल्दो बहुत टेक्निकल, बहुत तो नहीं टेक्निकल चीज है थोड़ी सी, बट समझनी इसलिए समझ लेते हैं थोड़ी सी। लेट मी गिव एन वेरी सिंपल एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉरगेट जीएसटी, ठीक है। आपके कोई ट्रांजेक्शन है, तीन लोग हैं ए बी सी, उनके बीच में ट्रांजेक्शन है, ए को बी को 20 रुपए देने हैं, ठीक है। एंड सपोज बी को सी को 20 रुपए देने हैं एंड ए को सी को ए को 20 रुपए देने हैं। बेसिकली द इंटायर जिस्ट इज कि इन तीनों की आपस में कुछ ना कुछ उधार एक दूसरे के साथ, तो इट इज वेरी कॉमन कि वो आपस में भी सेटल कर सकते हैं कि मुझे इसको पैसे देने हैं, इसको इसको पैसे देने हैं, तो ऐसे करके आपस में पैसे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। वो अल्टीमेटली ए ने सी से रिसीव करने हैं 20 रुपए और बी को देने हैं, और बी ने भी ए से रिसीव करने हैं, सी को देने हैं, तो अल्टीमेटली वो सेटल हो जाएंगे पैसे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या था? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलो सेटलमेंट पर्पस के लिए था कि अगर आपने, बिकॉज बेसिकली जीएसटी कौन चार्ज करता है? द शॉपकीपर, जो शॉपकीपर है, तो वो कुछ जीएसटी चार्ज करेगा, उसके पास कुछ जीएसटी रिसीव होगा, तो वो उसको सेंटर को पे, गवर्नमेंट को पे करना होता था। बट कुछ बैलेंस भी होता था, ठीक है, जो वो जीएसटी वगैरह पे करता था रो गुड्स वगैरह पे।
तो उसमें क्या होता था कि अल्टीमेटली सेटल हो जाते थे, ठीक है। दिस इज अ वेरी टेक्निकल, तो आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल, बट द थिंग वॉज कि सेटलमेंट हो जाता था कि जितना जीएसटी उसको गवर्नमेंट को पे करना था, एंड बेसिकली जितना जीएसटी उसने किसी को पे किया था, सो वो सब चीजें सेटल हो जाती थी। और उसको सेटल करने के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी है, जीएसटीआईएन नंबर जरूरी है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, ठीक है। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ जीएसटी. So I hope we are clear with the GST and the demonetization. ठीक है. So now I'll quickly do one thing since we are left with, I think, just let me see the time. So okay. 5, I cannot tell you. So it's been, I think, half an hour. We will take 10 minutes to revise the entire chapter. So first we started with the introduction part, ठीक है. इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट में यू हैड द टू स्कूल ऑफ थॉट, दो लोग थे, ठीक है। इससे पहले की स्टोरी, पहले चैप्टर की स्टोरी, आई होप यू नो कि पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। वो बहुत बेकार स्टेट में थी। उसके बाद से 1947 से 1990 तक क्या हुआ वो हमने पढ़ा था। सो इंट्रोडक्शन में हमें दो स्कूल, दो पॉजिटिव और नेगेटिव स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी चूज करी वो बहुत अच्छी थी, और कुछ लोग इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 1991 में एक क्राइसिस आया, द बीओपी डेफिसिट क्राइसिस, ठीक है। बीओपी की टर्म्स में क्राइसिस आया था 1991 में, ठीक है, विच वॉज अ ह्यूज क्राइसिस, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ गया था। सो ये क्या था, इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था कि सिंस इंडिया को पेट्रोलियम वगैरह और काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट वगैरह करनी होती थी दूसरे कंट्रीज से, तो उसमें क्या होता था, इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की ज़रूरत होती थी, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की ज़रूरत होती थी, बट इंडिया के पास 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम हो गए थे कि इट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द फोर्टनाइट, 15 डेज के लिए भी वो सफिशिएंट नहीं थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, और उसके साथ साथ ना इंडिया अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर पा रहे थे, इंडिया was not able to do the interest payment, ठीक है। सो इंडिया was not able to do interest payment. तो nobody was willing to lend to India, कोई भी कंट्री इंडिया को लोन वगैरह देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया ने पहले से लोन लिए थे, वो भी वापस नहीं कर पा रहा था। सो ये क्राइसिस था। ये क्यों हुआ, ठीक है। एक तो हमने देखा कि क्राइसिस एग्जैक्टली क्या था, देन वी सो कि ऐसा हुआ क्यों था, विच वॉज ट्रेस्ड बैक टू 1980 से स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे। कुछ कुछ कमियां थी हमारी इकोनॉमी में, कुछ गलतियां थी हमारी, जो धीरे 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 पाइल अप होती होती 1991 में क्राइसिस बन गई। देन व्हाट वाज द वे आउट वी सो, वे आउट क्या था, वे आउट था कि इंडिया ने अप्रोच किया आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को, ठीक है। दोनों को अप्रोच किया, एंड आएगा, ठीक है, दोनों को अप्रोच किया, और उन्होंने इंडिया को कुछ $7 बिलियन का लोन दिया अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। बट उन्होंने इस कंडीशन पे लोन दिया कि इंडिया एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आएगा, अपना जो उन्होंने एक कुकून बना रखा है, अपनी कंट्री को एक प्रोटेक्ट करके रखा है, उस चीज को खत्म करेगा, और इंडिया जो है वो ग्लोबलाइज होगा और ओपन अप होगा बेसिकली। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी केम इनटू इफेक्ट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में पहले तो दो मेजर्स थे, स्टेबलाइजेशन एंड द स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्टेबलाइजेशन नाम से ही पता लग रहा है, स्टेबलाइजेशन मेजर्स वो मेजर्स थे जिनमें बेसिकली जो उस टाइम पे प्रॉब्लम थी, उसको इकोनॉमी को जो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, एक प्रॉब्लम ये भी थी कि इन्फ्लेशन बहुत था, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बीओपी के डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए जो मेजर्स थे, जो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, दोज वर स्टेबलाइजेशन मेजर्स। उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल मेजर्स थे वो थे कि लॉन्ग टर्म में क्या चेंजेस लाए जाएं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एक सही स्ट्रक्चर में रहे, ठीक है। नाउ वी सो दिस, ओके, जस्ट आई विल इरेज द स्लाइड ओनली, जस्ट गिव मी अ मिनट, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में तीन अगर हम मेजर पार्ट देखें, जिसको हम LPG भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या था
कि लिबरलाइजेशन मीन्स द ओपनिंग अप, इसको हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, ठीक है, इफ समबडी इज वाचिंग इन हिंदी। सो उसमें क्या था कि अलग अलग सेक्टर्स को लिबरलाइज किया गया, जैसे टैक्सेस कम कर दिए गए, फॉरेन सेक्टर को ओपन अप किया गया, ट्रेड टेरिफ्स कम कर दिए गए। सो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चेंजेस आए, स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेन सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 74% लिमिट कर दी गई। सो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, स्टार्टिंग से बहुत सारे मेजर्स इंक्लूड करे गए। इफ यू वांट टू बी, इफ आई कैन बी मोर स्पेसिफिक तो मुझे देखना पड़ेगा। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल में रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर में आरबीआई का रोल फैसिलिटेटर कर दिया गया था रेगुलेटर से। टैक्स रिफॉर्म्स में टैक्सेस कम कर दिए गए थे। एंड द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में ट्रेड को ओपन अप कर दिया गया था और बाहर की कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दिया गया था। सो दिस वाज द लिबरलाइजेशन, ठीक है। फिर हमने एक क्रिटिकल अप्रेजल देखा था छोटा सा। देन वी स्टार्टेड विद द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या था, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि अपनी इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के हाथ, और बेसिकली इसका मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनको गवर्नमेंट से हटा के प्राइवेट सेक्टर्स को दे देना, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर विल बी द ओनर ऑफ दीज कंपनीज, जो गवर्नमेंट कंपनीज हुआ करती थी। तो इसमें प्राइवेटाइजेशन हुआ था। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। इसमें हमने पढ़ा था कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। देन वी स्टडीड अबाउट द महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। देन वी स्टडीड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वाज बेसिकली इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। एक पूरी कंट्री को, सॉरी पूरे वर्ल्ड को एक ओपन विलेज बना दिया गया, ग्लोबलाइज्ड विलेज बना दिया जाए, बॉर्डरलेस वर्ल्ड बना दिया जाए। सो दैट वाज द मेन एम फॉर ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन था, ठीक है। सो दैट हैपेंड। और उसके हमने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पढ़े थे। उसमें हमने दो चीजें और पढ़ी थी, आउटसोर्सिंग एंड द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आउटसोर्सिंग बेसिकली क्या होता है, आउटसोर्सिंग इज कि आप अपनी जो कोर सर्विसेज हैं उनको आउटसोर्स करते हैं। कि फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी में वाटर सर्विसेज है, वो मैं आउटसोर्स कर दूं कि किसी भी छोटी सी कंपनी को, और आई कैन ईदर आउटसोर्स बिग थिंग्स लाइक द फाइनेंस और कंसल्टिंग फर्म्स होती है। कंसल्टिंग फर्म्स आई होप यू नो, उनमें क्या होता है कि दूसरी कंपनी है वो कंसल्टिंग को आउटसोर्स कर देती है, उससे हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, हमारी कॉस्ट कम आती है। नाउ WTO वाज अ ऑर्गेनाइजेशन एट द ग्लोबल लेवल जो वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करती थी, पॉलिसीज, रूल्स, गाइडलाइंस लेके आती थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995, ठीक है। एंड इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ, रेगुलर मेंबर ऑफ WTO, और उन्होंने सारी पॉलिसी वगैरह को एडहर किया था। बट रिसेंटली देर हैज बिन क्वेश्चन कि क्या इंडिया को WTO का मेंबर बना रहना चाहिए, क्योंकि WTO अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट और क्रिटिक्स जस्ट फेवर्स डेवलप्ड कंट्रीज, वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उतना अच्छा नहीं है। सो दिस वी स्टडीड। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के बाद वी स्टडीड we did the critical appraisal of LPG policy. We did the positive impacts and the negative impacts. नेगेटिव इम्पैक्ट आए थे कि एग्रीकल्चर में बहुत रिड्यूस हो गया था, अनइवन डेवलपमेंट था। पॉजिटिव्स क्या थे कि हमारा सर्विस सेक्टर हुआ था, GDP ग्रोथ हुई थी, फॉरेन इनफ्लो हुआ था, रिजर्व्स का इनफ्लो हुआ था, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया था। तो ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पढ़े। उसके बाद टुडे वी हैव डन द GST, the goods and services tax and the demonetization. By this we complete our syllabus and the complete our chapter. I hope it is clear to you. Now I will cover Unacademy's Plus subscription features. Where are the features? Okay, so Unacademy's Plus subscription features, basically you have a mentor, correct guidance. You also have basically doubt clearing sessions एंड वेरियस अदर बेनिफिट्स विच यू कैन चेक आउट, ठीक है। तो आपके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं प्लस के। यू हैव डाउट क्लियरिंग सेशंस, आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट क्विज एंड लाइव टेस्ट एंड करेक्ट गाइडेंस, मेंटरशिप, ऑल द मटेरियल इन द PDF फॉर्मेट। ये आपके अलग अलग बेसिकली बेनिफिट्स होते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के। So these are the pricing of plus subscription which you can see, ठीक है। These are the original prices, फिर डिस्काउंट होने के बाद ये बन जाती है वो, ठीक है। You can use the code which is KAY10, ठीक है, to avail an instant 10% discount. Then we come to Unacademy's iconic subscription features. Unacademy's iconic subscription features में क्या होता है, you get a personal mentor,
ठीक है, जिसके थ्रू आप यू कैन शेयर ऑल योर एकेडमिक डाउट्स एंड कंसर्न्स. यू हैव अ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, यू हैव अ वीकली रिपोर्ट कार्ड. ठीक है, देन यू हैव अ योर पेरेंट्स कैन ऑल्सो कनेक्ट विद योर मेंटर, यू हैव अ स्टडी प्लानर and all the benefits of Unacademy Plus subscription. So basically, Iconic is an extended version of the Plus subscription. ठीक है, एंड यू हैव बेसिकली जो प्लस के सारे बेनिफिट्स आपके मिलने वाले हैं. Then these are the prices of Iconic subscription. You can check those, and again you can use the discount code and get the discount 10% discount. These are the discounted prices. Now these are the few steps by which you can join the Unacademy's quiz. ठीक है, इन स्टेप्स के थ्रू आप क्विज ज्वाइन इन कर सकते हो. You can pause the video and check those steps out. You have Unacademy's free special classes feature. So you have the real-time interaction using chats and emojis. You have a very good user interface and very good platform to try on. And since these are free of cost, so I suggest you to go and try those out. You have a question tab to ask any number of questions. You have an option to raise hand, to ask doubt, to tell me through emojis that I am whether confused or whether this is a good concept or this I have understood this, all of that. You have a live poll option for the quizzes, and you have a leaderboard where you can compete with your friends. Okay, definitely check out the free special classes. These are the classes that happen on the application but are free of cost. And then lastly, thank you for watching this video, and I hope you are having good time, and the festive season is uplifting your spirit and is working in your favor, and you're having really a good time with the families, with the loved ones. Thank you for watching the video. Thank you for tuning in. Do like the video, share the video to appreciate the efforts just. And I'll wind up the class now. Thank you, and happy Diwali again to all of you.